Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine and enjoying your online lectures. Today, this is our 22nd lecture overall and second lecture of this chapter number 1. The name of the chapter is Quadratic Equation. This is week 7 and lecture number 22. Today is 5th August 2020. So the name of the chapter is quadratic equation. We learned about a quadratic equation, that what is a quadratic equation. So this is the definition of the quadratic equation, that an equation in which the maximum or the highest exponent or power of the variable is 2, that is called a quadratic equation. The standard form or general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. This condition must be imposed, because if a becomes 0, then this term will be vanished and the equation will become a linear equation. So therefore this condition must be imposed, that a must not be equal to 0. Therefore ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, is the standard or general form of the quadratic equation. And we have learned that if bx is not exist or not present, then the equation will become a pure quadratic equation and it will get the form ax square plus c equal to 0, where a is not equal to 0. Now to solve quadratic equation, we have learned three different methods: by factorization, by completing square and by quadratic formula. तो पहले हम ये दो मेथड पढ़ चुके हैं, इस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो था उसमें फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर के थे। लेकिन यहाँ पे अब ये जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है, अगला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पहले डिराइव करेंगे, फिर उस पे जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो पहले हम इसका देखते हैं कि किस तरह हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला, if ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0 is a quadratic equation, then for solving this equation we have a quadratic formula as follow: x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. This is a quadratic formula or solution of the quadratic equation. So we know that x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac and under square root of divided by 2a. This is a quadratic formula. ये याद करें कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, then we have a formula for solving that equation, and this formula is called quadratic formula. So the shape of the quadratic formula is x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So we will solve different questions or different examples by this formula, or we can solve different quadratic equation by using this formula. So in first of all we have to prove this formula, that how this formula will be developed, or how can we derive this formula. So this formula can be derived by solving this equation by completing square. Ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, and if we solve this by completing square, then we get a quadratic formula. So क्वेश्चन आता है पेपर में कि derive a quadratic formula, या ये आया होगा कि सॉल्व ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या इस तरह का क्वेश्चन आएगा
कि find the solution of ax square plus bx plus c equal to 0. So we will solve this equation by completing square and we will get a quadratic formula, or we can derive a quadratic formula by solving this equation, that is by the standard equation of the quadratic by completing square. So we have learned in completing square the first step to write the equation in standard form. So this is already in standard or general form. Now, the second step of the completing square is to divide the whole equation by a, by the coefficient of x square. यानी तमाम इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवीजन कर ले. तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, so divide the whole equation by a. Here we will get a x square and here we will get b over a x. From here we can get c over a equal to 0. नेक्स्ट स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि टू शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इक्वल टू minus c over a. This will become, if we shift on the right hand side, this will become minus c over a. Now complete these two terms. We have to make a perfect square of these two terms. So इन दोनों को complete square बनाएं. कैसे बनेगा? Square of the first term plus b over ax plus b over 2a whole square. मैंने बताया था कि b over a का हाफ, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ जो है उसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कर लें. तो हाफ क्या है? b over 2a होल स्क्वायर, और यहाँ b over 2a होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. सो x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड पे माइनस c ओवर a एज इट इज, और इसको सिंप्लीफाई करें तो b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, और अगर 4a स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac. अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. सो x प्लस बी ओवर 2a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर. अब ऊपर जो है न्यूमरेटर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट विल बी एज इट इज इन स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. और नीचे 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम 2a माइनस बी ओवर 2a. यहाँ से इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें. b ओवर 2a को राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस ये, और ये टर्म एज इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. अब 2a एलसीएम आएगा तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज द quadratic formula or the solution of the equation ax square plus bx plus c. ये इस इक्वेशन का सलूशन है, या इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं. अगर वेरिएबल हमारे पास x यूज हुआ है तो दिस विल बिकम x. अगर वेरिएबल हमारे पास y है इस इक्वेशन में तो फिर इसकी जगह y आ जाएगा. अगर t है तो t आ जाएगा. जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इस x की जगह वो वैल्यू पर आ जाएगी. और बाकी हमारे पास a b c क्या है? a हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b कोएफिशिएंट ऑफ x है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है. अब इस फार्मूले पे हम देखें मुख्तलिफ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं. सो एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो फर्स्ट पार्ट इसमें है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या बनेगा? ये होगा, देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. ये माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, और 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो माइनस हो जाएगा, और 7x एज इट इज. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0. ये रीअरेंजिंग से हमारे पास आ जाएगा. हमने अरेंज किया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. ये x पावर 2 है, x पावर 1 है, x पावर 0 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है.
ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो 1 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x 7 है, b की वैल्यू 7 हो गई, कांस्टेंट ऑफ -2 है तो c इज इक्वल टू -2। एज वी नो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुटिंग वैल्यूज, अब a b c की जो ये वैल्यूज है इसमें पुट कर लें। पुटिंग से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू फिर 1 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर था तो 49 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जार 8 और डिवाइडेड बाई 2a, तो इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। फर्दर -7 प्लस माइनस, अब देखिए ये सिंप्लीफाई करें, 8 प्लस 49 दिस विल बिकम अंडर रूट 57 ओवर 2। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से 2 आ जाएगा, अंडर रूट 57 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज आ जाएगा। सो s इज इक्वल टू, यानी सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा, s का मतलब क्या है, सोल्यूशन सेट। यही वैल्यू जो x की है इसको यहाँ पे लिख ले, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है कि ये दो रूट्स है एक्चुअली, ठीक है, एक है -7 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2 और दूसरा है -7 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ये मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, देखें दूसरा एग्जांपल है या दूसरा पार्ट 3 है इस एक्सरसाइज का। अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 3। ये भी परफेक्ट, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ शिफ्ट कर ले तो 4 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 इंटू अंडर रूट 3, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। अच्छा, अगेन फिर एज वी नो दैट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर ले, b की वैल्यू 1 थी तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर -1 यानी +1 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की वैल्यू अंडर रूट 3 है, b की वैल्यू c की वैल्यू है -4 इंटू अंडर रूट 3 और होल डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू फिर अंडर रूट 3। अब इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 16 अंडर रूट 3 से सिर्फ अंडर रूट 3 से और अंडर रूट 3 से सिर्फ 3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस -1 और उसको सिंप्लीफाई करें 48 बन जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 3 एज इट इज, -1 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 49 अंडर रूट आ जाएगा। अब 49 अंडर रूट जो है, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। अब चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि 7 हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट हमने ख़त्म कर लिया, तो इधर x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। अब इस वाले को सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से -1 प्लस 7 से +6 आ जाएगा ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 एज इट इज। 2 और 3 की कैंसिलेशन हो जाएगी तो ऊपर 3 आ जाएगा। सिमिलर केसेस हियर, -1 7 की एडिशन होगी तो -8, 2 और 8 की कैंसिलेशन हो जाएगी -8 की तो ऊपर 4 आ जाएगा। हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट 3 और -4 ओवर अंडर रूट 3 वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3 मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। पहले हमने उसमें किया स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास था उसमें हमने इस तरह का टर्म सिंप्लीफाई किया था। सो यहाँ से अंडर रूट 3 अगर आप सिंप्लीफाई करें दोबारा 3 आ जाएगा, एक अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो एक अंडर रूट बच जाएगा और ये -4 इंटू
√3 एज इट इज, -4/√3 एज इट इज आ जाएगा। ये दो रूट्स हमारे पास आ गए, एक माइनस में एक प्लस में, इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख लें। √3, -4/√3। अगर आप -4/√3 पहले लिख लें और 3 बाद में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे होना इस तरह चाहिए कि -4/√3 पहले लिख ले और √3 बाद में लिख ले, क्योंकि सेट में हम स्मॉलर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे, 4x² - 14 = 3x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अरेंज कर ले रीअरेंजिंग से। 4x² - 3x - 14 = 0। ये 3x जो था इधर शिफ्ट कर ले तो -3x हो जाएगा, = 0। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -14 है। अब अरेंज कर ले इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। एज वी नो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वही क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा पुट किया, पुटिंग वैल्यूज की है। b की वैल्यू -3 पुट की है, यहाँ भी b² था तो -3² हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, c की वैल्यू -14 है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू फिर 4 है। सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 9 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 14 कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये वही स्टेप दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए +3 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 9, और इसको सिंप्लीफाई करें 224, ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 14 आ जाएगा तो 224, और होल डिवाइडेड बाई 2 4 8। तो 3 प्लस माइनस इसको सिंप्लीफाई करें 233 अंडर रूट में आ जाएगा ओवर 8। अब 233 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में लिखने के बजाय हम इसी तरह इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा। तो इस सोल्यूशन को हम सेट के अंदर लिख लेते हैं, तो ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये एक्चुअली दो वैल्यूज है, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, प्लस माइनस की वजह से ये दो वैल्यूज है। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, 3x² + 8x + 2 = 0। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 2 है। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसमें वैल्यूज पुट कर ले, -8 + -8² - 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू अगेन 3 है। यहाँ 8 का स्क्वायर ओपन करूँगा 64 आ जाएगा, ये 3 2 6 और 6 4 24, तो मेरे पास ये बन जाएगा इस तरह 64 - 24, फिर -8 प्लस माइनस यहाँ से 40 आ जाएगा। अब ये ज़रा देखें, 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में 10 एज इट इज़ रहेगा। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसमें से 2 कॉमन करूँगा। यहाँ ख्याल करें, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि 6 और 8 की कैंसिलेशन करते हैं, तो इस तरह कैंसिलेशन नहीं होगी। पहले आप 2 कॉमन कर लें, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। दोनों में से 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। 2 और 6 की कैंसिलेशन करूंगा तो नीचे 3 आ जाएगा। सो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3, ये इसका सोल्यूशन होगा। इसको सेट के अंदर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी तरह। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं है। ये पार्ट 7 है, 3/x - 6 -4/x - 5 = 1। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, उसके बाद इसको फार्मूला से सॉल्व करना है। तो देखिए, x - 6 और x - 5 दोनों फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास इसका LCM हो जाएगा। सो LCM में बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x - 6 इंटू x - 5 वी गेट। फर्स्ट टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x - 6 ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ x - 5 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर -4 एज इट इज़, x - 5 ख़त्म हो जाएगा तो x - 6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और राइट साइड पे 1 के साथ ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ से इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, 3x - 3 5 15,
इसी तरह -4x एज इट इज, और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 6 4 ज़ार 24 विच इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज। 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये 1 को अगर हम ना भी लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर -6x -5x प्लस 5 6 ज़ार 30। फिर सिंप्लीफाई कर ले इसको या अरेंज कर ले। ये -4x है और ये +3x है, तो इससे -x आ जाएगा। ये -15 है और ये +24 है, इससे +9 आ जाएगा। सिमिलर राइट साइड पे x स्क्वायर एज इट इज, -5x और -6x, इन दोनों से -11x और +30 एज इट इज। अब अरेंज कर ले। ये एक्स स्क्वायर लिख लिया, -11x लिख लिया, ये प्लस हो जाएगा, ये -x है वहाँ शिफ्ट करके ये +x हो जाएगा, +30 एज इट इज़, और ये 9 उधर शिफ्ट करके तो -9 हो जाएगा। यहाँ भी 0 बच जाएगा लेफ्ट साइड पे, वो मैंने इधर लिख लिया। सो एक्स स्क्वायर -11x + x + 30 - 9 = 0। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो -10x आ जाएगा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो +21 आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -10 होगी और सी की वैल्यू +21 हो जाएगी। फर्दर देखिए, ए बी सी की वैल्यू हमने मेंशन की, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया और इसमें वैल्यूज पुट की। -b, तो b की वैल्यू क्या है -10, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि डबल माइनस होगा, प्लस माइनस, फिर -b का यानी b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू -10 है, उसका होल स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की 21, ये अंडर रूट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a, यानी a की वैल्यू 1 है। सो x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 10 स्क्वायर हो जाए, 10 का स्क्वायर 100, और ये सिंप्लीफाई करें तो -84, लास्ट में इससे 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 4, तो एक प्लस वैल्यू में आ जाएगी और दूसरी माइनस वैल्यू में आ जाएगी। सो देखिए x इज इक्वल टू 10 + -10 4/2, तो इधर x + 10 4/10, x इज इक्वल टू 10 + 4/2, और x इज इक्वल टू 10 - 4/2, ये आ जाएगा 14/2 और 7, और ये सिंप्लीफाई करें तो 6/2 या 3 आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास रूट्स आ गए 3 और 7, इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखूंगा तो ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखें ये भी परफेक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ देखें ये पार्ट 8 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एक 3 है मेरे पास फ्रैक्शन में, एक 2x है, एक x - 1 है, सारे डिफरेंट फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है इसमें, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6x × x - 1 आ जाएगा, ये एलसीएम होगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस एलसीएम वी गेट, फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई करूंगा तो x - 1 खत्म हो जाएगा, 6x इस x + 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड टर्म में 6x के जब 2x के साथ कैंसिलेशन कर लूँ तो 3 बच जाएगा, तो 3 × x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड पे 3 2 = 6, तो 2x × x - 1 और ये 7, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करें इसको, यहाँ से 6x² + 12x, ये सिंप्लीफाई करें -3 एज इट इज़, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें 4x - x² - 4 + x, और ये सिंप्लीफाई करें तो 14x² - 14x। फर्दर ये 6x², ये 12x, इनको मल्टीप्लाई करें -12x, ये +3x², ये +12 और ये -3x = 14x² - 14। ये 6x² और 3x², इनको ऐड कर लें 9x² बन जाएगा, ये +12x और -12x कैंसिल हो जाएगा, ये -3x को यहाँ पे लिख लिया, और ये 12 एज इट इज़, राइट साइड 14x² - 14x एज इट इज़ लिख लिया। अब अरेंज कर लें, 9x² - 14x² -3x और +14x +12 = 0। इसको सिंप्लीफाई करें, -5x², यहाँ सिंप्लीफाई करें तो 11x और +11 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको पॉजिटिव बना दें। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 कॉमन करके बोथ साइड को डिवाइड कर ले उससे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x², ये बन जाएगा -11x, ये बन जाएगा -12 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब x a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू -12 है। सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यूज़ मैंने मेंशन की ए बी सी की, फिर फार्मूला पुट किया, फार्मूले के अंदर फिर वैल्यूज़ पुट की है, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 11, ये 11 का स्क्वायर 121, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20 और 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 240 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें 361 परफेक्ट स्क्वायर है तो 19 हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लें, so either this equal to 0 or this or x is equal to 11 plus 19 over 10 or x is equal to 11 minus 19 over 10। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 30 over 10 3 आ जाएगा इससे, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो -8 over 10 या -4 over 5। ये दोनों सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लिए तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं। 9 नंबर पार्ट है, a over x minus b plus b over x minus a is equal to 2। जो पिछले दो क्वेश्चन हमने किए उसी तरह क्वेश्चन है, एलसीएम में मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ के बजाय ए बी सी है, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हमारे पास वो ए बी सी है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, एलसीएम इज x माइनस बी एक्स माइनस ए। फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़, और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। यहाँ फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, आपने 9 में एक फार्मूला पढ़ा है वो भी यूज़ कर सकते हो। सो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब इसको अरेंज कर ले, देखिए 2x स्क्वायर ये लिख लिया, फिर -2ax ये लिख लिया, ये ax राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो -ax हो जाएगा, फिर -2bx, यहाँ प्लस bx है उधर शिफ्ट होगा तो -bx हो जाएगा, 2ab एज इट इज़ आ जाएगा, बल्कि 2ab बाद में लिख ले, ये a माइनस ए स्क्वायर है उधर शिफ्ट कर ले प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर है तो राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2ab राइट साइड पे ऑलरेडी है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो जितने वैल्यूज थे वो हमने राइट पे शिफ्ट किए तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको अरेंज कर ले, अरेंजमेंट इस तरह होगी 2x स्क्वायर एज इट इज़, इसको सिंप्लीफाई करें देखिए दोनों लाइक टर्म्स है तो एडिशन हो सकती है, इसके -3ax हो जाएगा, ये भी दोनों लाइक टर्म्स है इसकी भी एडिशन हो जाएगी तो -3bx हो जाएगा, और यहाँ ये फार्मूला बन जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x and this is the standard form of quadratic equation। a की वैल्यू आपके पास 2 होगी, b की वैल्यू -3a माइनस 3b, या इससे आप कॉमन करें माइनस तो 3a प्लस बी 3b हो जाएगी, और c की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर। फर्दर हम इस तरह लिख लेते हैं कि -3 को हमने कॉमन किया तो a प्लस बी आ जाएगा, तो ये a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 इंटू a प्लस बी, और c की वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर। फार्मूला लिख लिया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की है, वैल्यूज पुट करने में थोड़ा सा एहतियात कर लें क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन इसके साथ है, ब्रैकेट में भी है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे मैं ये डालूंगा, माइनस ये फार्मूले वाला है, और ये -3a इंटू बी ए प्लस बी, 3 इंटू ए प्लस बी, ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस, फिर इस ब्रैकेट के अंदर -3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू आ गई, -4a, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है 2 है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 3 इंटू ए प्लस बी, प्लस माइनस ये माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा,
तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ओपन करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, -4 2s are 8, और ये फिर वही फार्मूला है, इसको भी ओपन करें, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फार्मूले के साथ 9 मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ 8 मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16ab। अगर आप इसको बेशक ना ओपन करें तो ये 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये आ जाएगा -8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह कर ले तो तब भी ठीक है। ये हमारे पास अब देखें 9a स्क्वायर और -8a स्क्वायर, इससे सिर्फ a स्क्वायर आ जाएगा। ये 9b स्क्वायर और -8b स्क्वायर, इससे सिर्फ b स्क्वायर आ जाएगा। 18ab और -16ab, इससे सिर्फ 2ab आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज होगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फिर फार्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो प्लस माइनस a प्लस b आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लें, दो अलग अलग रूट्स लिख लें, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। प्लस वाले को सॉल्व करूंगा तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, 3a प्लस 3b, ये a प्लस b एज इट इज, 3a प्लस a 4a हो जाएगा और 3b प्लस b 4b हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन कर ले तो इस नीचे वाले के साथ कैंसिलेशन होगी तो a प्लस b आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b हो जाएगा, 3a माइनस a, इससे 2a आ जाएगा, 3b माइनस b, इससे 2b आ जाएगा। 2 को कॉमन कर लें, 4 के साथ कैंसिलेशन होगी तो a प्लस बी ओवर 2। एक वैल्यू x की हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये आ गई है। दोनों को सेट के अंदर लिख लें तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 10, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स। इसको पहले अरेंज कर लो, माइनस एल एक्स स्क्वायर ये राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो प्लस एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 2l प्लस एम इंटू एक्स, ये प्लस में है, राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा 2l प्लस एम इंटू एक्स, प्लस ये l प्लस m, ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस होगा, l प्लस m इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमारे पास l आ गई, b की वैल्यू माइनस टाइम 2l प्लस m और c की वैल्यू l प्लस m। अगेन फार्मूला पुट किया एज वी नो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें। ये ज़रा सिंप्लीफिकेशन में ख्याल करें कि माइनस ए स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। 2l प्लस m का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, और माइनस ये मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 4l स्क्वायर और माइनस 4lm। अब ये 4l स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, 4lm के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ m स्क्वायर बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस तरह आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m, अंडर रूट में से ख़त्म हो जाएगा ओवर 2l। अब एक दफ़ा प्लस में लिख ले, दूसरी दफ़ा माइनस में लिख ले। प्लस ये गलत है, ये नहीं है, ये है 2l प्लस 2m ओवर 2l, और इसको सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन करें तो 2 कैंसिल होगा, l प्लस m ओवर l, और यहाँ पे 2l प्लस m माइनस m तो m कैंसिल हो जाएगा, 2l ओवर 2l कैंसिलेशन होगी तो 1, सो 1 और l प्लस m ओवर l, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर ले, अपने कॉपी पे सारे 1 बाय 1 लिख ले। 2 पार्ट्स मैंने छोड़ दिए, बाकी सारे पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए। सो ये आपका होमवर्क होगा कि सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी पे लिख लो।